7, 8, open the gate. 9, 10, a big stand. My name is Uttar, my father name Adi Mamdikyo, my caste is I am Karwan. My name is Kalsum, my father's name is Rajab Ali, my caste is Sumra, I am in class 1. मुंहिंजो नालो लीमू आहे। My name is Limu and I'm teaching here since 2018. When I first came here as a teacher, there were only 5 to 6 students, and that too from Sir Isa's family. Sir Isa and I have really worked hard, and consequently today we are teaching to almost 80 students. Alongside us, Akbar Farooqi has also immensely contributed to this school by constructing a classroom, donating school furniture, and distributing books, bags, and uniforms. Therefore, we are very grateful to him for all his efforts and time to these students. मेरा नाम अकबर फ़ारूकी है और हमारी तंजीम है चिल्ड्रन एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तकरीबन 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था आरओ प्लांट के सिलसिले में, और इसी गांव के अंदर देखा कि और मसले मसाइल है। जैसे ये मेरे पीछे जो स्कूल है इसके अंदर टीचर का और बच्चों के बैठने का मसला था, और स्टेशनरी वगैरह नहीं थी, इनके पास वसाइल नहीं थे। फिर हमने इसके छोटे छोटे मसाइल हल किए, और फिर जैसे जैसे करते गए बच्चों में भी देखा कि पढ़ने के लिए और इनके जो पढ़ने का बड़ा शौक़ है इनको बच्चों को, ये हमने नोटिस किया, और गांव वालों में भी इतना इंटरेस्ट देखा कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। Assalamu alaikum. My name is Reha Rahmatullah and I'm currently studying Social Development and Policy at the Habib University, Karachi. Me and my team members have visited this place previously, and we've been here again this time to cover the generation gap between the students of Karachi and the Thar Parker. We plan to do several team building activities over here, and which we have conducted previously on our visit, and we have conducted several other activities to bridge that gap between the students of the city versus the student of this village. अच्छा, जिस तरीके से हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद जब हम यहाँ आए हैं और हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम चल रहा है कि हमारी जो लास्ट टाइम की विज़िट थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, क्योंकि उसने जो है वो बच्चों के पोटेंशियल को ट्रिगर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और उसके अंदर एक सलाहियत पैदा की कि जिसके ज़रिए वो बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकें और उनको एक ऐसे ख्वाब की तरफ, ऐसे ड्रीम की तरफ ले जाया जा सके कि जिसकी तामील जो है वो उनको नज़र आए, और उनको ये मालूम हो कि वो भी आम लोगों की तरह, बाकी दुनिया की तरह इस दुनिया में जीने का और कामयाब होने का हक़ रखते हैं। My name is Sahil and I am from Karachi. I am here for educational workshop for CFWO. This is my second visit here, and the last time I visited here I was very surprised to see the potential which is untapped. Many students are very capable, but they don't have the resources or the right activities to enhance their capabilities. So here we are with our team to bring exciting activities and new games which can enhance their potential and groom their capabilities. तालीम के साथ साथ बच्चों को तफरीह की ज़रूरत भी होती है, इसीलिए हमने ये प्लेग्राउंड बच्चों के लिए बनाया है ताकि अपना बच्चे पढ़े भी और अपना खेलते भी रहें। यहाँ स्विंग्स वगैरह लगाएं। अभी हमने और आगे के लिए प्लान इसको पूरा ग्रीन करना है, तो हम पेड़ और घास वगैरह यहाँ लगा के इसको हरा भरा कर दें। When our team came here for our last workshop earlier this year, we saw a need for a separate playground and separate chairs for each student. Now that we are here again after a gap of almost 9 months, we can prominently see the difference these little things, like a new playground, a new classroom and a new chair, are making to students. ये थर में अपनी नौयत का वाहिद चिल्ड्रन पार्क होगा जो ग्रीन्स और अपना घास और ये सारी चीज़ें लगी हुई होंगी। ये स्कूल माशाल्लाह से अब इसमें लड़कियों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अब हमने ये फ़ैसला किया है कि लड़कियों का सेक्शन अलग करें ताकि उनको प्रॉपर्ली गर्ल्स लेडीज़ टीचर के थ्रू उनको पढ़ाया जाए। In fact, if I talk about the most striking difference I have observed after coming back here is the rapid increase in the strength of female students.
As Chairman CFWO, Mr. Akbar Farooqi has already stated, there is a need for a separate girls' school so that girls could not only be comfortably taught by a female teacher, but it also helps in raising their standards of education. लड़कियों का सेक्शन अलग करके यहाँ करीब में एक जगह हमने अपना तयन कर ली है और वहाँ पे हम लड़कियों को एक अलग स्कूल बना दें जहाँ पे लेडीज़ टीचर ही लड़कियों को तालीम देंगी और ये बच्चियाँ 5 जमात से आगे भी पढ़ सकेंगी और ये अपने नौयत का वाहिद स्कूल होगा जो 80 से 100 किलोमीटर में जिन्हें अपना लेडीज़ टीचर लड़कियों को तालीम देंगी और इंशाल्लाह माँ बाप भी अपने बच्चों को दूर दूर से यहाँ भेजेंगे। तमाम प्रोजेक्ट आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है, तो हम आपकी पूरी इसमें मदद चाहेंगे कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें और यहाँ पे लड़कियों को तालीम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी दें। इस स्कूल को कायम हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ रही है। CFW जिस तरह से इस इलाके में काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी तादाद में इस पसमानदा इलाके के लोग अपनी बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं और अब फैसला ये किया गया है कि फ़ौरी तौर पे लड़कियों के लिए एक गर्ल्स स्कूल बनाया जाए, जिसके लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी बिल्डिंग की तामीर शुरू हो जाएगी और ये सब का सब आपके ताउन से ही मुमकिन है।